Okay, good morning everyone. Today we are going to start with the next chapter, and that is called as Securities Contract Regulation Rules 1957. ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे. Okay. Now this is a relatively small chapter as you compare it to maybe SCRA, that is Securities Contract Regulation Act, or even if you compare it with SEBI. So it is a comparatively smaller area, that is Securities Contract Regulation Rules 1957. I think I have mentioned this before also. I'll just repeat it. 1957 दिया हुआ है. So basically the Securities Contract Regulation Act must have come in the year 1956. Must have नहीं, had come in the year 1956, and the corresponding rules were released in the year 1957. ठीक है? तो ये वाला ये 1957 वाले rules आ गए यहाँ पे. This is similar to Companies Act 2013 and Companies rules which were released in 2014. Okay. Now let's see. Now, just to give an overview of this chapter has just the rules given that, for example, if there is a broker, then a broker, I had told you earlier that a broker is a member of the stock exchange. So, member बनने के लिए क्या क्या qualifications चाहिए, what all is required, when will we say that the broker is eligible to become a member, is not eligible to become a member, all these areas we are going to see. Okay. So this part which you are able to see here, this we'll read later. This part which you are able to see here, यहाँ पे these three columns basically. We'll be completing that first. Okay, that will be a priority. So ये पहले खत्म हो जाएगा. And this basically contains the majority chunk of this what do you call the chapter. इसके बाद then you will see some other rules which are small rules which can come for good amount of marks in the exam. तो यहाँ पे the main intention will be to ensure that these area the columns are done properly. ठीक है. अभी दूसरा एक और चीज है यहाँ पे. Keep this chapter as your priority chapter when it comes to MCQs. ठीक है. इसमें बहुत सारे चिंटू points है जो MCQs में आ सकते हैं. And on which I personally don't want you all to lose the marks. ठीक है. आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है. Let's see. Securities Contract Regulation Rules 1957. पहले लिखा है Rule 8 details the qualification for membership of a recognized stock exchange. तो बोलना who is a member of a recognized stock exchange? It's the broker, sir. तो ये broker बनने के लिए क्या qualification है? That is given in which rule? Rule 8. ठीक है. Rule 8. It's a pretty big rule, so you have to see that. The below-mentioned persons can be admitted as the members of the recognized stock exchanges, subject to certain conditions as prescribed in Rule 8 of the Securities Contract Regulation Rules 1957. A snapshot of which is given below. ठीक है. Now be very patient. Okay, be very patient. देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है Rule 8 sub Rule 1. Okay, no person shall be eligible to be elected as a member if and then नीचे points flow होता है. So when they write the heading as no person shall be eligible to be elected as a member if, it means that if the person is coming under any of the point which are mentioned after what I read now, then basically these areas में अगर कोई भी एक area आ जाएगा, then that person is not eligible to be a member. ठीक है. तो अपन हमेशा जब भी पढ़ेंगे, whenever we read the points below, we'll always start the points with no person shall be eligible. ठीक है. Or the person is not eligible if, and then we'll read that point. ठीक है. So then that will give you a proper understanding कि ये किस तरीके से आएगा. Okay. So because this rule, sub rule, it starts with a negative. It starts with a negative. ठीक है. तो पढ़ते समय अपने को ऐसा बोलना है कि this person cannot be a member if, and then we'll read that point. ठीक है. अभी यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है, वो क्या लिखा है यहाँ पे. इसका एक layman terms में I've just given you. You can maybe write it down next to that rule 8 sub rule 1 के उधर. You can just write it down. What you should not do if you want to be elected as a member. तो यहाँ पे लिखा है what you should not do. What you should not do if you want to be क्या लिखा है यहाँ पे elected as a member. तो क्या क्या नहीं करना चाहिए so that you are eligible to be a member. इस तरीके से दिया हुआ. Simple. अभी just as we read this and we understand कि अच्छा इसका मीनिंग क्या लिखा है. इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है कि नीचे जो पॉइंट्स रहेंगे वो सब नहीं करने चाहिए अपने को. ये पॉइंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे. No person eligible for admission as a member under Rule 8(1) shall be admitted unless. अभी ये देखो ये कैसे आ गया. No person shall be eligible. तो एलिजिबल नहीं रहेंगे जब तक, मतलब अनलेस एंड देन नीचे वाले पॉइंट्स दिए. मतलब क्या, नीचे वाले पॉइंट्स अपने को सेटिस्फाई करने चाहिए. ठीक है, करने चाहिए तो अपन एलिजिबल रहेंगे. तो देखो इसका मीनिंग क्या आएगा. What should a person do to be a member? Simple. What should a person do to be a member? Even this you can write it there, so it is easy for you. What a person should do to be a member. इस तरीके से दिया हुआ. 8 sub rule 3 देख लेते थे. क्या लिखा है. No person who is a member at the time of application for recognition or subsequently admitted as a member shall continue as such if, और एक continuation के लिए mainly दिया हुआ है यहाँ पे. जो क्या लिखा है. What you should not do if you want to be recognized or continue as a क्या लिखा है यहाँ पे member. सिंपल यहाँ तक गया.
ठीक है। तो बेसिकली मेन यहाँ पे कंटिन्यू वाला आएगा कि अगर आपको कंटिन्यू करना है एज अ मेंबर तो आपको ड्यूरिंग अ मेंबरशिप क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे, दैट इज इन रूल 8 सब रूल 3, इस तरीके से दिया हुआ है। तो दीज आर द मेजर डिस्टिंक्शन। अभी अपन क्या करेंगे, पहले ना अपन ये 8 सब रूल 1 पहले खत्म करेंगे, पूरा वो लाइन पूरा पढ़ लेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। देन आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड, देन विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिनिश टिल द एंड, देन विल अगेन कम टू हियर, फिनिश टिल द एंड। इस तरीके से अपने को यहाँ पे प्रॉपर्ली जाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर इफ, एंड देन दे आर गिवन द फर्स्ट पॉइंट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, most of the points are very simple, very easy to understand, but some points are there in which I have to discuss with you all. देखो क्या लिखा है, he is less than 21 years of age, तो यहाँ पे age का मैटर आ गया, less than 21 years of age। आगे he is not a citizen of India, तो बेसिकली क्या सेंस बनता है यहाँ पे, सर अगर एक पर्सन 19 year old रहेगा तो बेसिकली is less than 21 years of age, it means that that person is not eligible to be elected as a member of the stock exchange, तो वो ब्रोकर नहीं बन सकता बेसिकली। आगे यहाँ पे लिखा है नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सर इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई एक इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो इंसान कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर नहीं बन सकता, बरोबर है। लेकिन आगे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे ये वाला, ये देखो यहाँ पे, सी दिस पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट द गवर्निंग बॉडी may in suitable cases relax this condition upon prior approval of, क्या लिखा है यहाँ पे, सेबी, upon prior approval of what they have written is सेबी। तो गवर्निंग बॉडी जो रहेगा यहाँ पे ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अगर सेबी का उन्होंने प्रायर अप्रूवल ले लिया, देन दिस सिटीजनशिप का मामला दे कैन डू सम एडजस्टमेंट एंड फाइंड अ वे आउट। गवर्निंग बॉडी बेसिकली मींस द गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज जी बोर्ड से, जैसे अपन जानते हैं जी बोर्ड से, सिंपल है यहाँ पे। सो दे कैन टॉक टू सेबी एंड टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, एंड also a person who is not a citizen of India, can they take him as a member? Answer is yes, not a problem, सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा, he has been adjudged bankrupt, डिवीजन आ गया, और रिसीविंग ऑर्डर इन बैंक्रप्सी हैज बीन मेड अगेंस्ट हिम, तो उसके अगेंस्ट एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर, एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर आना बाकी है यहाँ पे, रिसीविंग ऑर्डर इन बैंक्रप्सी हैज बीन मेड अगेंस्ट हिम, और हैज प्रूव्ड टू बी इंसॉल्वेंट इवन दो ही हैज ऑब्टेन्ड हिज, क्या लिखा है, फाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। सो हैज बीन प्रूव्ड टू बी इंसॉल्वेंट, एंड इंसॉल्वेंट मतलब क्या, दैट पर्सन इज करंटली एन इंसॉल्वेंट पर्सन, एंड यहाँ पे उसका फाइनल डिस्चार्ज भी हो गया, लेकिन स्टिल दैट पर्सन हैड टू गो थ्रू इंसॉल्वेंसी, दैट एंटायर थिंग, नो। तो फाइनल डिस्चार्ज मतलब ही हैज पेड हिज ऑल हिज ड्यूज एंड एवरीथिंग, स्टिल बोलते हैं यहाँ पे कि दिस पर्सन विल हैव टू स्टिल this person still cannot be a broker in the stock exchange, clear है। आगे, he has been compounded with his creditors unless he has paid 16 annas in a rupee। अभी ये क्या है सर उन्होंने ऐसे कोई बचपने से कोई मम्मी डैडी या कोई दादा दादी बोलते रहेंगे 4 आना 8 आना, ठीक है। सर ये 16 आना इन रुपी क्या होता है, तो पहले समझो, बिफोर क्या बोलते हैं, द रुपी वाज ब्रॉट इन, देयर वाज अ व्हाट यू कॉल अ करेंसी, तो रुपी था, लेकिन क्या बोलते हैं, देयर वाज अ डिनोमिनेशन बोल सकते हैं व्हिच वाज स्मॉलर देन दैट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एना, ठीक है, एना। तो पहले क्या होता था, एक रुपी के अंदर यहाँ पे 16 एनास होते थे, 16 एनास, एक रुपी के अंदर 16 एनास। तो पहले वी हैड समथिंग कॉल्ड एज 50 पैसे, उसको अपन बोलते थे 8 आना, 8 आना मतलब 50 पैसे, बिकॉज अगर 1 रुपी इज 16 annas, then 8 annas, 8 how do I say, 8 annas is basically called as 50 पैसे। वैसे 25 पैसे is equal to 4 आना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। Slowly what happened, जैसे the inflation came in, so all these smaller denominations kept on going out. So basically what happened is now 50 पैसे 25 पैसे is not even in existence, ठीक है, उतने का कोई अपने को कुछ मिलेगा भी नहीं, और वो मार्केट में सर्कुलेशन में भी नहीं है। तो ये 16 annas in a rupee का मतलब क्या है, 16 annas in a rupee is like a term saying कि हर एक पैसा चुकाना चाहिए, it is like हर एक पैसा, एक रुपी में 16 annas ही होते हैं, तो क्या लिखा है unless he has paid 16 annas in a rupee, मतलब unless he has paid everything that is due from him, क्लियर है। तो जितना भी उसका यहाँ पे पैसा था उसने क्रेडिटर्स को यहाँ पे पे कर दिया रहना चाहिए, ठीक है। he has been compounded with his creditors unless he has, क्या लिखा है यहाँ पे, paid 16 annas in a rupee, okay, so he has paid 16 annas in a rupee, great। कंपाउंडेड अगर किया क्रेडिटर से, कंपाउंडेड मतलब क्या, द क्रेडिटर्स एंड हिम हैव कम इनटू अ कॉम्प्रोमाइज सेइंग कि चलो इतना दे दो और ये मैटर खत्म कर दो। जैसे क्रेडिटर्स का अगर 10 लाख बाकी है तो इसने यहाँ क्रेडिटर्स के यहाँ पे एक कंपाउंडिंग कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पे कहा होगा 10 लाख, मतलब मेरे पास 10 लाख नहीं है, यू टेक 4 लाख, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, देखो ही हैज कंपाउंडेड विद द क्रेडिटर, सो क्रेडिटर का उसने कॉम्प्रोमाइज किया, बिकॉज ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड, नो नाउ ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट, नो पर्सन शाल, ठीक है, तो नो पर्सन शुड हैव कंपाउंडेड विद हिज क्रेडिटर्स, ठीक है।
और ये नहीं होना चाहिए। बट आगे लिखा है अनलेस ही हैज पेड 16 रुपीज, मतलब अनलेस ही हैज पेड एवरीथिंग टू द क्रेडिटर। तो अगर उसने क्रेडिटर को सब कुछ पे कर दिया है, एवरीथिंग मतलब 100% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर हैज बीन पेड, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, देन दे आर सेइंग दैट ओके नाउ यू कैन बी अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इस तरीके से बोला उन्होंने। सिमिलर लिटिल ट्रिकी यहाँ पे, स्पेशली एट 16 एनास पार्ट यू नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीस। बोलो यहाँ तक क्लियर एकदम? ये point number A, B, C and D. First tell me whether this is clear or not, then I can move ahead. Point number A, B, C and D. Clear यहाँ तक? Okay. Go very slowly, हाँ? Okay, go very slowly because ये अगर ये वाला एरिया करोगे ये कॉलम अच्छे से, तो आगे ये कॉलम में कहीं बहुत जगह पे वहां पे रिपीटेशन भी है, ठीक है? जैसे जस्ट आई टेल यू, देखो क्या लिखा है, जज बैंकक्रप्ट, मिला जज बैंकक्रप्ट यहाँ पे, इजी, ceases to be a citizen of India, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो something which is very similar to the part we have already done. So do this column properly, so it will help you in the columns ahead. आगे देखते क्या लिखा, he has been convicted of an offense involving fraud and क्या लिखा है पे, dishonesty। आगे एक सेकेंड, हाँ तो एक सेकेंड, यहाँ पे convicted of an offense involving fraud, तो fraud में अगर पकड़ा गया है तो this person cannot be a broker, ठीक है? broker और सॉरी member in the recognized stock exchange। आगे लिखा हुआ है। अभी दिस पॉइंट इज जबरदस्त, तो एक अच्छे से पॉइंट को समझते, ठीक है? सो एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन हियर एंड सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। देखो उन लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ब्रोकर रहेगा ना, इफ अ पर्सन इज अ ब्रोकर, नो ब्रोकर, देन दे डोंट वांट ऐसे पार्ट टाइम ब्रोकर जो थोड़ा बहुत ब्रोकिंग करता है, थोड़ा बहुत अदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बिजनेस ओनर, ओके, सो आई एम रनिंग माय ओन क्लासेस, so I cannot be a broker, because they will say कि बॉस नहीं, we want a person who is full time into broking। क्लाइंट का कॉल है, अपन बोलते नहीं यार लेक्चर में हूं, बाद में अपन शेयर्स खरीद लेंगे। अरे how can this be done? वो तो प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहना है, यहाँ पे क्लाइंट कैन गो इनटू लॉस। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे थे, सी इफ यू आर अ ब्रोकर देन यू शुड बी अ फुल टाइम ब्रोकर, नहीं तो ब्रोकर मत बनो। तो वो इंटेंशन से उन्होंने यहाँ पे ये वाला, ये जो एफ वाला पॉइंट है ना, ये बनाया है यहाँ पे, ठीक है? तो फॉर दैट नो, एक बार खाली रीड कर लेते, देन यू विल ओनली सी कि यहाँ पे कितना इफ्स एंड बट्स है। याद रखना, वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड, क्या बोलता है, नो पर्सन हु इज, क्या बोल रहा हूं मैं, नो पर्सन हु इज, तो अपन यहां बोलेंगे नो पर्सन, और इज बोल दो चलो, नो पर्सन, देखो क्या लिखा है, इज एंगेज्ड, एंड नाउ वी विल रीड। तो कैसे पढ़ेंगे, नो पर्सन इज एंगेज्ड एज अ प्रिंसिपल और एम्प्लॉय इन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटीज और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, except as a broker or agent, not involving any personal financial liability, unless he undertakes on his admission to sever his connection with such business। ठीक है? बाई चांस अगर नोट्स में सर्वर लिखा रहेगा ना, उसको सर्वर को निकाल के यहाँ पे सेवियर कर दो। सेवियर मतलब टू कट ऑफ द टाइज, सेवियर मतलब नाता तोड़ देना, ठीक है? कट ऑफ द टाइज, ठीक है? तो दैट्स इट, सेवियर। नाउ इफ यू सी द नेगेटिव व्हिच आर देयर नो हियर, जबरदस्त वन पॉइंट व्हिच कैन बी गिवन टू अ टेस्ट टू अ स्टूडेंट कि चलो इसको एनालाइज करो करके। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, नो पर्सन स्टार्ट्स विद द नेगेटिव, देन यू आर गोइंग टू अदर देन, मतलब इसके अलावा, तो अगेन इट इज गोइंग टू दैट नेगेटिव वाला एरिया, एक्सेप्ट इज अगेन क्रिएटिंग अ नेगेटिव, then not यहाँ पे आ गया which is again a negative, और माने unless आ गया which is again a negative। in such a small part, in just a one line you can see how many, कितना इधर उधर जा रहा है यहाँ पे। तो पहले मेरे साथ ना स्लोली समझो किस तरीके से आएगा, then basically we'll read and then when you read it no you'll understand, ठीक है? तो स्लोली जाना मेरे साथ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, very slowly, हाँ, very slowly, see this। broker no, they want a person who is a full time broker, so that is the main crux कि उन लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। That is the main crux. What they are saying is कि ब्रोकर जो रहेगा ना यहाँ पे फुल टाइम ब्रोकर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ और बिजनेस हैंडल करे, ये करे वो करे, ऐसा नहीं चाहिए उन लोग। तो आइए देखते हैं what they want। They are saying कि if the broker is involved with any business, ठीक है, if he is involved already with any business, और बाद में एप्लीकेशन दे रहा है यहाँ पे कि उसको यहाँ पे ब्रोकर बनना है यहाँ पे, तो बिजनेस अगर आएगा ना, तो पहले बिजनेस में ऐसे सोचेगा, ऐसे पहले देखो कि बिजनेस यहाँ पे डज इट डील विद द सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, डज इट डील विद द सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ठीक है? अगर उसका बिजनेस ही इस चीज का है तो बोल रहे हैं अरे ये तो पहले से अपने मार्केट में यहाँ पे, तो बोल रहे ऐसे इंसान को हम आपको पक्का यहाँ पे, यू आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इन रिलेशन टू व्हाट यू कॉल, इन रिलेशन टू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस, आप पहले से यही कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका ऐसे कोई और अलग बिजनेस नहीं है, आप सिक्योरिटी मार्केट कमोडिटी डेरिवेटिव्स वही बिजनेस से जुड़े हुए हो। अच्छी बात है। अभी ये बिजनेस का एक तो क्या, सिक्योरिटीज मार्केट कमोडिटी डेरिवेटिव बिजनेस, सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अदर बिजनेस, सो आई एम पुटिंग अदर बिजनेस हियर, ठीक है? अदर बिजनेस जो कर रहा है ना ये, जैसे सिक्योरिटी मार्केट कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अलावा वो नहीं कर रहा है, वो कुछ अदर बिजनेस कर रहा है,
लेकिन अदर बिजनेस में भी ना दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन ब्रोकिंग, ब्रोकिंग, ब्रोकर है, ब्रोकिंग का बिजनेस है इसका। और यहां पे ब्रोकिंग के अलावा यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे अदर देन ब्रोकिंग, अदर देन ब्रोकिंग। अभी देखो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, अदर देन ब्रोकिंग। अब भी उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रोकिंग का बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व है, बेसिकली उसका अदर बिजनेस है, ही इज नॉट इनटू सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, लेकिन वो ब्रोकिंग के बिजनेस में, ब्रोकिंग के बिजनेस में, ठीक है। अब ये ब्रोकिंग के बिजनेस में ना उसका कोई भी नो पर्सनल लायबिलिटी, मतलब खुद का पैसा लगाया नहीं है, खुद का पैसा लगाया नहीं है। सो इनटू अदर बिजनेस बट ही हैज नॉट पुट हिज ओन मनी, तो यहाँ पे उसका खुद का पैसा लगाया नहीं है, तो नो पर्सनल लायबिलिटी हियर, ठीक है। आगे ये लिखा है कि यहाँ पे दिस पर्सन इज इनटू ब्रोकिंग, क्लियर है। तो बोलते ये तो ब्रोकिंग कर रहा है, ऐसे भी अच्छी बात है। तो अगर कोई सिक्योरिटीज मार्केट का कर रहा है तो ये यहाँ पे वील गिव हिम द, बिकॉज ही इज अ ब्रोकर पहले से। कोई अगर ब्रोकिंग कर रहा है तो चलो यहाँ पे ब्रोकिंग कर रहा है बट इन अंडर द बिजनेस, बट ठीक है ब्रोकर तो है, तो यहाँ पे वील गिव हिम द एक्सेस। तो बेसिकली दिस पर्सन कैन आल्सो बी अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ही हैज नो पर्सनल लायबिलिटी। क्या लिखा है, ही हैज नो पर्सनल लायबिलिटी। आगे लिखा है अगर कुछ अदर देन ब्रोकिंग रहेगा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अदर देन ब्रोकिंग, अदर देन ब्रोकिंग some other business, example I am a professor, ठीक है, या तो फिर I am a businessman, और यहाँ पे बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं बोलता हूँ कि चलो मैं ब्रोकिंग करता हूँ, किसी क्लाइंट का कॉल आ गया, बोलूंगा अरे सॉरी लेक्चर चल रहा है बाद में कॉल करना, लेक्चर चल रहा है बाद में कॉल करना, दिन में 10 आवर्स 12 आवर्स आई एम टेकिंग लेक्चर्स, सो आई विल से कि अरे सॉरी लेक्चर चल रहा है बाद में कॉल करना, बाद में कॉल करना, बाद में कॉल करना, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। क्लाइंट बोलेगा अरे ये तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, एंड विच इज राइट आल्सो, सी इफ आई एम अ ब्रोकर देन आई शुड एक्ट एज अ ब्रोकर, नहीं तो क्लाइंट विल लूज द मनी, क्लियर है यहाँ तक। तो व्हाट दे आर सेइंग हियर इज, इफ यू आर इन्वॉल्वड इन सम अदर बिजनेस that is other than broking, then you need to sever the ties, sever the connection with such business। sever the connection मतलब नाता तोड़ दो ऐसे बिजनेस से जो आपको ब्रोकिंग से दूर रख रहा है, ठीक है। तो sever the ties का मतलब क्या है, sever the ties मतलब कि you leave that business and come into broking, ठीक है। so only if you leave that business then the stock exchange can give you membership, but if you are still involved in that business then the stock exchange cannot give you membership because you're already, your head is in that business, then how can you focus in broking। client का तो यहाँ पे लॉस होने का चांस है, सिंपल है। एक बार रिवाइज करते खाली अच्छे से, इसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बिजनेस है एक, बिजनेस सिक्योरिटी मार्केट कमोडिटी डेरिवेटिव्स रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू आर तो राइट इन द हार्ट ऑफ इट, ठीक है। दूसरा अगर कोई अदर बिजनेस है वो भी ब्रोकिंग है, ठीक है, तो एटलीस्ट द फंक्शनलिटीज इज द सेम, तो ब्रोकिंग है जिसमें अपना कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, तो ग्रेट, देन यू कैन एंटर दिस बिजनेस, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों में परमिशन मिलेगा, ये दोनों में परमिशन मिलेगा। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अदर देन ब्रोकिंग वाला कुछ बिजनेस रहेगा ना, अदर देन ब्रोकिंग, देन दे आर सेइंग यू हैव टू सेवियर द कनेक्शन। अगर आपको यहाँ पे मेंबरशिप चाहिए तो अगर आप सेवियर द कनेक्शन करते हो, जैसे अदर देन ब्रोकिंग है और आपने सेवियर द कनेक्शन कर दिया, मतलब नाता तोड़ दिया, तो हम आपको यहाँ पे परमिशन देंगे। लेकिन अगर आपने नाता नहीं तोड़ा है तो आपको यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगा। परमिशन एज इन यू विल नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। चलो एक बार मुझे बोलना है यहाँ पे, क्लियर समझ में आया या नहीं आया, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। Easy एकदम, okay। Now wait up, now we have to read and ensure that you are understanding every bit of it, so stay with me। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, see this, यहाँ पे आ जाना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, he is engaged as a principal or employee in any business, ठीक है, principal or employee in any business, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, पहले स्टार्टिंग में डूइंग विद नो, ठीक है, तो नो पर्सन शुड बी एंगेज इन द एज अ प्रिंसिपल और एम्प्लॉय इन एनी बिजनेस, और बाद में ये लिखा है अदर देन मतलब कौन सा बिजनेस में आप प्रिंसिपल रहेंगे एम्प्लॉय रहेंगे तो चलेगा, अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटीज और कमोडिटी का लिखा है यहाँ पे डेरिवेटिव्स, ठीक है, सिक्योरिटी से डील करो, सिक्योरिटी मार्केट से या कमोडिटी डेरिवेटिव से डील करो तो चलेगा। तो बेसिकली दिस कवर्स अवर दिस पॉइंट वेयर दिस इज ओके, तो ये अपने को मिल गया यहाँ पे वैलिडेशन। आगे लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट as a broker or agent not involving any personal financial liability, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ऐसा कुछ बिजनेस रहेगा जो सिक्योरिटीज या कमोडिटी डेरिवेटिव से रिलेटेड नहीं है, तो आप आ जाओगे बेसिकली ये अदर बिजनेस की कैटेगरी में, यू आर कमिंग टू दिस अदर बिजनेस कैटेगरी। सो देन दे आर सेइंग दैट इफ यू आर कमिंग टू दिस अदर बिजनेस कैटेगरी एंड देन इफ यू आर मे बी इनटू क्या बोलते हैं, यू आर इनटू ब्रोकिंग and where no personal financial liability is involved, then what they are saying is then it is fine, because यहाँ पे हम लोग ने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, ठीक है। अभी लास्ट में लिखा है यहाँ पे ना, लास्ट इज द बॉम्ब, देखो क्या लिखा है unless he undertakes on admission to sever his connection with such business। मतलब अगर आपका यहाँ पे ऐसा कुछ बिजनेस रहेगा यहाँ पे जो ब्रोकिंग वोकिंग से कुछ रिलेटेड नहीं है, अदर देन ब्रोकिंग,
देन दे आर सेइंग कि वेयर दे आर सेवियरिंग द कनेक्शन, क्या लिखा है, सेवियरिंग द कनेक्शन। बोलो यहाँ पे, ये क्लियर हुआ यहाँ पे एकदम अच्छे से, प्लीज टेल मी। दिस इज अ धासु पॉइंट। बाकी सब वो इंसॉल्वेंट बैंक, वो तो समझ में आ जाता है अपने को, ठीक है। सिटीजन वाला पॉइंट, एज लेस देन 21 ईयर, वो भी कोई पॉइंट है, पॉइंट हो तो ऐसा, क्लियर है। सर सब सीए है ना, पास होने के बाद है ना यही बोलते हैं, पॉइंट हो तो ऐसा, पढ़ते समय सबको इजी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक ये? सर कैन यू प्लीज रिपीट द नो पर्सनल लायबिलिटी वाला पॉइंट? श्योर, आई टेल यू। नो, सी दिस, ब्रोकिंग में व्हाट दे आर सेइंग इज, ब्रोकिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है ना यहाँ पे, तो उसका कुछ पर्सनल लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर हिज ओन व्हाट यू कॉल, नॉट इन हिज ओन लायबिलिटी, खुद का पर्सनल लायबिलिटी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बेसिकली उसका खुद का अगर यहाँ पे कुछ ये रहेगा, व्हाट यू कॉल, लोन रहेगा, तो खुद का अगर कोई लोन रहेगा ना यहाँ पे, तो देन दे आर सेइंग कि सॉरी बॉस, अगर आप ब्रोकिंग कर रहे हो और अगर कुछ लायबिलिटीज है बहुत सारे बिजनेस के अंदर, देन वी कैन नॉट गिव यू अ मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये हम दे नहीं सकते आपको यहाँ पे। तो अगर आपका कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे, देन प्लीज यू कैन, देन वी कैन मे बी गिव यू अ मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बोले यहाँ क्लियर एकदम? अंडरस्टूड? नो, प्लीज कॉपी दिस चार्ट, दिस चार्ट इज रियली यूजफुल, ठीक है। ये एक्चुअली ये पॉइंट समझने के लिए, wherever you go, suppose you study in library, if a student is there and the student is saying अरे मेरा लॉ सब पढ़ के हो गया है, लॉ में तो टेंशन नहीं है, उसको बोलने का भाई ये पॉइंट समझा मेरे को अच्छे से, ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला, the point that has around 6 negatives, basically 6 negatives, देखो, no person, sorry 5 negatives, no person other than except not unless, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। तो no person other than except not and unless, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बोलने का भाई थोड़ा ये, थोड़ा मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं, कैन यू प्लीज डिकोड दिस एंड गिव इट टू मी? तो इस तरीके से आएगा, क्लियर एकदम, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, प्लीज टेल मी, इजी एकदम। परफेक्ट, ओके, नाउ गो वेरी स्लोली, गो वेरी स्लोली, ओके। नाउ इट इज वेरी इजी, नाउ आगे वाला पॉइंट इजी पड़ेगा, देन इफ यू हैव गॉट अ ग्रिप ऑन दिस, देन वी कैन गो अहेड नाइसली। देखो क्या लिखा है, he has been at any time expelled or debarred as a defaulter, तो he is a defaulter by any other stock exchange, कोई और स्टॉक एक्सचेंज ने लात मार दिया तो आगे अपने स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे मांगने के लिए मेंबरशिप। तो अगर आपको कोई और स्टॉक एक्सचेंज ने लात मार दिया और बोल दिया कि आप यहाँ पे डिबार हो, या तो फिर आपको एक्सपेल कर दिया क्योंकि आपने कुछ फ्रॉडलेंट कुछ काम किया रहेगा आपने, तो ऐसा आपने कुछ किया है, तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप नहीं मिल सकता हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी। आगे लिखा है लास्ट में, he has been previously refused admission to membership unless a period of 1 year has elapsed since the date of, क्या लिखा है such rejection। तो इधर लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सपोज उसने पहले भी अप्लाई किया था टू द स्टॉक एक्सचेंज, बट वेयर देयर वर सम फॉल्ट, फॉर एग्जांपल द मेंबर हैड कम विद मे बी, उसका कोई डिफॉल्ट था यहाँ पे, वन ऑफ दीज डिफॉल्ट, लेट्स से इसका ये बिजनेस वाला काम था यहाँ पे, ये बिजनेस में था, एंड ही वाज इन दिस बिजनेस व्हिच वन दिस अदर देन ब्रोकिंग के बिजनेस में, ठीक है, एंड ही वाज नॉट रेडी टू सेवियर हिज कनेक्शन सो फास्ट, ठीक है। तो उधर क्या बोल रहे हैं कि काम कर दो, अब ये कनेक्शन सेवियर होने के बाद, सपोज आई जस्ट गिव यू अ टाइमलाइन तो इट विल बी मच मोर इजी। देखो, एक इंसान है ना यहाँ पे अप्लाई किया था और तभी पता चला कि उसका ये अदर देन ब्रोकिंग का कुछ बिजनेस है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स द स्टॉक एक्सचेंज डिड नॉट गिव हिम द मेंबरशिप का एक्सेस, तो उसको डिड नॉट गिव हिम द मेंबरशिप बेसिकली। तो बेसिकली इसने क्या किया यहाँ पे, इसने बोला कि ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सेवियर करना पड़ेगा ना कनेक्शन, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं मेरा बिजनेस निपटा देता हूँ यहाँ पे। तो उसने अपना बिजनेस निपटा दिया यहाँ पे। सो इन दिस गैप विच आई एम शोइंग हियर, उसने अपना बिजनेस निपटा दिया यहाँ पे, ही रैप्ड अप हिज बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस निपटाने के बाद यहाँ पे ही अगेंस्ट कम्स टू स्टॉक एक्सचेंज हियर, ठीक है, कि बॉस आई हैव ब्रोकन माय टाइज, नाउ प्लीज गिव मी द परमिशन। तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा, देखो बॉस, अब लास्ट टाइम जब परमिशन मांगने आए थे ना, उसके बाद 1 साल के बाद ही आप आ सकते हो हमारे पास, तो you can basically come to us on this date because this will complete how many years, this will complete 1 year, and after this 1 year is over you can come to us, and after this, and after only after that we can give you the permission, ठीक है। तो जब भी आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था और जब भी आप बाद में अप्लाई कर रहे हो, देयर शुड बी क्या लिखा है, गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 1 ईयर। देखो क्या लिखा है, he has been previously refused admission to membership unless a period of 1 year has elapsed since the date of, क्या लिखा है, such rejection। क्लियर यहां तक ये? नाउ that's what I'm telling you in this chapter. In this chapter, no, you need to be focused on the small points. See this यहाँ पे, a period of, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 year can come as an MCQ, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि in this point, where did that go, 21 years यहाँ पे। then you are looking at this 16 annas in a rupee, ये पे कर देना चाहिए अपने को, ठीक है, ये पे कर देंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट, you're right, the query is right,
Your understanding when you're writing this is correct. Clear एकदम यहाँ पे? Very easy to understand. एक second. Okay. This is the next part. ये अपन बाद में देखेंगे. This is 8 सब रूल 4 है ये, तो ये बाद में देखेंगे. बट पहले मुझे बताना यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट कॉलम क्लियर एकदम? This first column very very clear. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? Please tell me. Okay. क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे मार्किंग ले लिया सब कुछ? नो प्रॉब्लम एट ऑल? ठीक है. अभी याद कैसे करना है? ये बहुत सिंपल है. तो यू हैव टू रिमेंबर अ सिंपल कोड व्हिच आई एम गिविंग यू. बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सो इट इज इजी फॉर यू टू देन assimilate and keep it in one place. Okay, so tell me. आपका कोड आएगा यहाँ पे ABCDEF. क्या आएगा? ABCDEF. सिंपल. ठीक है. ए से आएगा एज, तो यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं एज. ये रहा एज 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 एज. ठीक है. बी से आएगा यहाँ पे बैंकरप्ट, तो अपन ये पॉइंट पहले ले रहे हैं, तो ये आएगा यहाँ पे बैंकरप्ट. सिंपल है. बी से आएगा बैंकरप्ट. सी से आएगा 2 पॉइंट्स. देखो क्या लिखा है यहाँ पे? पहले आएगा यहाँ पे कंपाउंडिंग, सॉरी सिटीजन, एंड बी सेकंड आएगा यहाँ पे कंपाउंडिंग. क्या आएगा यहाँ पे? कंपाउंडिंग. तो ये आएगा आपका यहाँ पे सी स्क्वायर. ठीक है. सिटीजन एंड कंपाउंडिंग. ओके. डी से अपना पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज डिसऑनेस्टी और फ्रॉड. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड के लिए अगर कन्विक्ट कर दिया किसी को तो दैट विल डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉड. ठीक है. यहाँ पे आपका मेन पॉइंट याद आएगा डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉड करके. ठीक है. दैट इज डी वाला पॉइंट. आई होप यू आर पुटिंग द नंबरिंग्स. तो यहाँ आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा ये 2, यहाँ पे यू कैन पुट दिस एज 3, दिस एज 4 एंड दिस एज करेंटली 5. ओके. ई से यू विल गेट यहाँ पे 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बेसिकली. ई से आएगा यू हैव टू स्टार्ट विद एंगेज्ड. एंगेज्ड तो अपन क्या बोलेंगे? ही इज एंगेज्ड एज अ प्रिंसिपल और एम्प्लॉय इन एनी बिजनेस other than securities or commodity derivatives. वो पॉइंट हो गया. And in that other business, he is a broker or an agent and not having any personal liability. या तो फिर if there is another business, ठीक है, where he is not a broker, then where he is not a broker, he has severed the connection with that business. Then he can be given a, क्या बोलते हैं यहाँ पे? He can be given the membership of the stock exchange. ठीक है. तो ये जो है ना यहाँ पे अपन चालू करेंगे इसको एंगेज के साथ. बट आई अंडरस्टैंड कि एंगेज सर मेन यहाँ पे एंगेज नहीं है, यहाँ पे मेन है कि किस तरीके से सारे पॉइंट्स याद करें. तो आई एम टेलिंग यू 100% दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट प्रॉपर्ली. तो भले अपन यहाँ पे एंगेज्ड लिखे, यहाँ पे एंगेज्ड इन बिजनेस को मेन पकड़े, बट यू नीड टू नो दिस चार्ट फॉर राइटिंग द पॉइंट्स. ठीक है. तो ये वाले पॉइंट को सिर्फ स्टार मार्क करना, और ये वाला अपना है एंगेज वाला पॉइंट. दिस आई एम टेकिंग इट एज ई. ठीक है. ई से एक और आएगा यहाँ पे एक्सपेल्ड और डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्टर. एक्सपेल्ड और डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्टर. सिंपल यहाँ तक है. ओके. एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा है पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो यहाँ पे ना मैंने ये टाइम पास किया मैंने कुछ भी. यहाँ पे मैंने लिखा है रिफ्यूज्ड. तो ऐसे बोलेंगे अपन यहाँ पे रिफ्यूज्ड एडमिशन फॉर 1 ईयर. रिफ्यूज्ड एडमिशन फॉर 1 ईयर. ठीक है. रिफ्यूज्ड एडमिशन रहेगा तो एक मिनट आओ. रिफ्यूज एडमिशन 1 ईयर मतलब जब से अपना एडमिशन रिफ्यूज हुआ है तब से लेकर 1 साल तक वी कैन नॉट बी गिवन मेंबरशिप अगेन. उसके 1 साल के बाद ही अपन वापस एलिजिबल हो जाएंगे मेंबरशिप के लिए. ठीक है. तो रिफ्यूज्ड का आई नीड दैट एफ. रिफ्यूज्ड का आई नीड दैट एफ. और ये बिकॉज अपन ये अजीब तरीके से लिखा ना, तो यू विल रिमेंबर इट आल्सो. ठीक है. टेक इट एज अ चैलेंज. यू विल रिमेंबर इट आल्सो, डोंट वरी. तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ये रिफ्यूज्ड. ठीक है. एक बार खाली बोल देते हैं. पहले क्या आएगा यहाँ पे एज. ठीक है. बैंकरप्ट. ये आएगा सिटीजन एंड कंपाउंडेड. ठीक है. डी से आएगा योर डिसऑनेस्ट या तो फिर डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉड. ई से आएगा 2, एक तो एंगेज वाला आएगा, दूसरा एक्सपेल्ड वाला आ जाएगा, और एफ से आ जाएगा रिफ्यूज्ड. एंड रिफ्यूजल अगर होगा तो 1 साल के लिए अपने को मेंबरशिप नहीं मिल सकता. बोलो यहां तक क्लियर एकदम? ये प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन इन द चैट एरिया. प्लीज टेल मी. वेरी इजी. ओके. क्लियर एकदम? ये सिंपल. चलो आगे बढ़ता है. लेट्स सी दिस. देखो क्या लिखा. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन एज अ मेंबर अंडर रूल 8 सब रूल 1 शैल बी एडमिटेड एज अ मेंबर अनलेस, एंड देन दे हैव गिवन हियर कि अनलेस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे. नाउ दिस सेज दैट व्हाट शुड अ पर्सन डू टू बी अ मेंबर. तो अभी ये पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब ये सब होंगे तो अच्छी बात है. अभी यहाँ पे ये जब अपने लेफ्ट साइड में देखा था कि इफ दैट पर्सन इज लेस देन 21 इयर्स तो इस पे अपन उसको एडमिशन नहीं दे सकेंगे. लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं ना अपन यहाँ पे अच्छी बात है, मतलब इतना तो मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. तो पढ़ते हैं यहाँ पे. देखो क्या लिखा है.
व्हाट शुड अ पर्सन डू टू बी अ मेंबर, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। देखते क्या लिखा पहले, he has worked for not less than 2 years as a partner with an authorized assistant or an authorized clerk or a remisier। remisier का मतलब क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट एंड गेट्स क्लाइंट फॉर द ब्रोकर। तो जो एजेंट का रोल प्ले कर रहा है फॉर द ब्रोकर, तो जो ब्रोकर रहेगा उसके लिए काम कर रहा है और क्लाइंट नए नए लेके आ रहा है उसके लिए, तो पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट एंड गेट्स क्लाइंट फॉर द ब्रोकर, इसको हम बोलते हैं रेमिसियर। क्या बोलते हैं? रेमिसियर। तो ये आदमी ऐसे होना चाहिए जिसने मिनिमम यहाँ पे 2 साल एज अ ऑथराइज्ड असिस्टेंट या तो ऑथराइज्ड क्लर्क या रेमिसियर और अप्रेंटिस वर्क किया। अप्रेंटिस मतलब एज एन इंटर्न, ठीक है, टू अ मेंबर। तो एक मेंबर के लिए उसने ऐसा काम किया रहेगा, तो सो दैट पर्सन कैन गेट क्या बोलते हैं, कैन गेट, बेसिकली अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि इसके पास यहाँ पे द एक्सपीरियंस इज देयर। ओके, again the important area here is, important area to note here is this part, देखो क्या लिखा है, 2 years, 2 years, again not less than 2 years मतलब minimum 2 years। ओके, easy, सिंपल। यहाँ पे ये खाली और रेमिजियर का मीनिंग खाली लिख देना वहां पे, ठीक है। दिस इज नॉट देयर इन आवर नोट, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये अपने एग्जाम में भी इसका मीनिंग लिखना नहीं है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए, सिंपल। आगे, he agrees to work for a minimum period of, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 years, ठीक है, agrees to work for a minimum period of 2 years as a partner or representative member with another member and to enter into bargains on the floor of the stock exchange and not in his own name but in the name of the, क्या लिखा है यहाँ पे, not in his own name और in the name of, क्या लिखा है, such other member। तो किसी के साथ यहाँ पे जुड़ जाता, बोलता है कि चलो मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट में, मतलब एक्सचेंज में आपके नाम पे मैं यहाँ पे ब्रोकिंग का काम करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल गेन एक्सपीरियंस और मुझे यहाँ पे 2 years यहाँ पे काम करना है आपके साथ यहाँ पे। सो इधर ही इज वर्किंग विद दैट पर्सन डायरेक्टली या तो फिर ही इज वर्किंग विद दैट पर्सन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। इधर भी क्या लिखा है यहाँ पे, 2 years, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 years। अच्छा, बट हियर व्हेन ही इज वर्किंग नॉट इन हिज ओन नेम, ही इज वर्किंग इन द अदर मेंबर्स नेम, ठीक है। आगे, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर बी, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, दोनों 2 years के थे। आगे, he succeeds to be to the established business of a deceased or retiring, तो he is a successor, ठीक है, of a deceased or retiring business। और business किसका था यहाँ पे, retiring member who is his father, uncle का business, brother का business या any other person who in the opinion of the governing body is a close relative। तो किसी भी क्लोज रिलेटिव के बिजनेस को अगर वो सक्सीड कर रहा है, ठीक है, जैसे उनके डेथ के बाद या उनके रिटायरमेंट के बाद, तो देन दे आर सेइंग कि ओके वी कैन गिव हिम द मेंबरशिप यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अपना नेपोटिज्म वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। सो कैन दैट हैपन? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। देखो कितना भी नेपोटिज्म बोलो, लास्ट में इफ दिस पर्सन इज डूइंग वेल एज अ ब्रोकर ओनली देन ही विल सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल हाल ही में अभी वो आईपीएल के ऑक्शन हुए थे एंड दैट देयर वाज अ roar over Arjun Tendulkar getting selected by Mumbai Indians। So the entire point is कि even if he gets selected, he will stay in Mumbai Indians for the long run only if he performs। बरोबर ना? अगर उनको प्रैक्टिस के समय लग रहा है कि यार ये तो आलसी लड़का है, यार ये तो बिगड़ा बच्चा है, यहाँ पे मेहनत ही नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर ऐसे रहेगा तो उसको तो ऐसे भी अंबानी तो टॉलरेट नहीं करके निकाल देंगे। दूसरा ऐसा है कि चलो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया है यहाँ पे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज सरनेम, बट नाउ ही हैज टू प्रूव, नो ही हैज टू प्रूव। तो इधर भी सेम है यहाँ पे कि अगर किसी को यहाँ पे मेंबरशिप मिल गया यहाँ पे एज अ ब्रोकर कि बिकॉज ऑफ डिसीज और रिटायरिंग क्लोज रिलेटिव या फादर अंकल ब्रदर जो भी है यहाँ पे, बट स्टिल ही हैज टू प्रूव, नो, अगर वो प्रूव रहेगा, अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को उसकी मेंबरशिप को यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। सिंपल यहाँ पे ही है। सो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। सो दैट इज 2 years, 2 years एंड दिस वी सी दैट इज डिसीज और रिटायरिंग को सक्सीड करना। आगे, provided that rules of the stock exchange may authorize the governing body to waive compliance, क्या बोल रहा हूं मैं, waive compliance with any of the foregoing conditions if the person seeking admission in respect of means, position, integrity, knowledge, experience of business in securities considered by the governing body to be otherwise qualified for, क्या लिखा है, membership। तो इधर क्या बोल रही है, ये जो ऊपर का कंडीशन था यहाँ पे, ये जो 2 years का रिक्वायरमेंट था, ये वाला 2 years का, यहाँ पे 2 years का जो रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे भी अपन 2 पॉइंट देखते हैं। कौन सा 2 पॉइंट देखते हैं? यहाँ पे 2 बोल देने का। 2 कौन से पॉइंट यहाँ पे देखो, डिसीज या रिटायरिंग रहेगा तो, ठीक है, डिसीज या रिटायरिंग को सक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 बोल दो यहाँ पे। तो 2 years 2 years 2 पॉइंट्स, 2 years 2 years 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स क्या है, डिसीज रिटायरिंग को अगर अपन यहाँ पे सक्सीड कर रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट में लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसे हुआ, अगर इसमें से भी अगर कोई 2 में भी नहीं आ रहा कोई, लेकिन अगर गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को लग रहा है कि नहीं यार, ये पर्सन का यहाँ पे पोजीशन, इंटीग्रिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब देखने के बाद वी सी दैट यू नो, उसके लिए ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज ओके दैट even if that person has not completed any of the 2 या 2 वाले points, we will still qualify for a membership, we will still qualify this person as a member of the stock exchange। बोलो यहाँ क्लियर। एंड गुड न्यूज इज आगे वाले इसमें कुछ भी ध्यान नहीं है। सो हियर दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग इन रिलेशन टू दिस, सो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू, ठीक है।
ओके, टेल मी, यार क्लियर है कि नहीं है? वेरी इजी, सिंपल, सेकंड कॉलम डन, बोलो, इजी, क्लियर एकदम, ये नो डाउट्स, ठीक है। 2+2+2, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं यहाँ पे 2+2+2, सो 2+2+2 क्या है यहाँ पे? 2+2+2 इज नथिंग बट 2 years, और रेमिजियर, या तो फिर इज एक्टिंग एज अ व्हाट यू कॉल दैट अप्रेंटिस, मतलब एक तरीके से इंटर्न, रेमिजियर। यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथराइज असिस्टेंट, ऑथराइज क्लर्क, इस तरीके से यहाँ पे वर्ड यूज किया है। 2 साल के लिए वैसे काम कर रहा है, या तो फिर 2 साल के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है लेकिन किसी और मेंबर के नाम से, ठीक है यहाँ पे। सो दैट मेंबर हैज गिवन हिम द परमिशन कि चल तू काम कर ले मेरे नाम पे। या तो फिर डिसीज या रिटायरिंग क्लोज रिलेटिव, या फादर या मदर भी आ सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, तो फादर, अंकल, ब्रदर या एनी अदर पर्सन, उनका यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ही इज अ सक्सेसर, तो वैसे हो जाएगा। या तो फिर अगर गवर्निंग बॉडी को लगता है कि नहीं यार दिस पर्सन इज अदरवाइज आल्सो क्वालिफाइड, इसका नॉलेज देख के, इसका एक्सपीरियंस देख के लग रहा है कि नहीं यार इसको देना चाहिए करके, इसका इंटीग्रिटी देख के, देन द गवर्निंग बॉडी मे स्टिल ग्रांट हिम द मेंबरशिप, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो वील कॉल दिस एज व्हाट, 2+2+2, ठीक है, 2+2+2। और अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी गवर्निंग बॉडी यहाँ पे फिर भी दे सकता है यहाँ पे। सो 2+2+2 अगर नहीं भी रहेगा तो, या तो फिर आई शुड नॉट राइट 2+2+2, आई विल बी रॉन्ग हियर, एक सेकंड रुकना, आई विल राइट 2 और 2 और 2, ठीक है, तीनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई अपन कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा 2 और 2 और 2, क्लियर है। और अगर वो सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इफ दैट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दैट इज बेसिकली गवर्निंग बॉडी के ऊपर आ जाएगा ये। ओके, सिंपल, प्लीज टेल मी, completely okay, completely clear, ठीक है। ओके, लेट्स गेट इनटू द लास्ट पॉइंट, देखते हैं कैसा आएगा यहाँ पे, लेट्स सी दिस। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, नो पर्सन हु इज अ मेंबर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिकग्निशन और सब्सिक्वेंटली एडमिटेड एज अ मेंबर शैल कंटिन्यू एज सच इफ, क्या लिखा है, शैल कंटिन्यू एज सच इफ what you should not do if you want to be recognized or continue as a, क्या लिखा है मेंबर, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए कंटिन्यू करने के लिए, मतलब अगर आपने इनमें से नीचे में से कुछ कर दिया तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है यहाँ पे। तो व्हाट यू शुड नॉट डू, तो ये अगेन ये नेगेटिव आ गया, दिस सिमिलर टू व्हाट वी हैड सीन इन हियर, व्हाट वी हैड सीन हियर, इससे ये सिमिलर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे भी था कि जो अपने को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी लिखा जो अपने को नहीं करना चाहिए। ये वाला पॉइंट था क्या, जो अपने को करना चाहिए, 8 सब रूल 2 था जो अपने को करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दिस कंडीशन वी शुड सेटिस्फाई। देखते हैं, आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी, जो क्या लिखा है, he ceases to be a citizen of India. So here they have said that he ceases to be a citizen of India. ठीक है सर, ये पॉइंट तो अपन ने पहले भी देखा था कि अगर ये यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कि अगर वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मेंबर एंड ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे वो कोई और कंट्री का भी सिटीजन हो गया यहाँ पे, तो लोग क्या बोल रहे हैं, सर इसको हम लोग एज अ ब्रोकर निकाल देंगे क्या? आंसर इज हाँ, ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बट यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया पहले से ही नहीं था, पहले से ही नहीं था, और वो बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो बना ही नहीं बाद में क्योंकि पहले से नहीं था, और पहले उसको परमिशन मिल गया था, पॉसिबल है क्या? यस सर, हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा था, गवर्निंग बॉडी यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेगी सेबी का, तो देन स्टिल दैट पर्सन कैन गेट मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इवन दो ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सर ये हमने यहाँ पे देखा था रूल 8 सब रूल 1 में। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, सिमिलर लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन शैल अफेक्ट दोज हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट हु वर मेंबर्स एट द टाइम ऑफ सच, क्या लिखा है, एप्लीकेशन, मतलब जो पहले से सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थे लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दिया था एंड उनको देखो क्या लिखा है, उनको एडमिशन मिल गया था, दे वर एडमिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 8 सब रूल 1 क्लॉज बी विच इज एग्जैक्टली दिस क्लॉज, देखो क्या लिखा है, रूल 8 सब रूल 1 का क्लॉज बी, और ये तो रूल 8 सब रूल 1 है ही ना यार दोस्त, दिस रूल 8 सब रूल 1 एंड दिस इज क्लॉज बी। तो अगर उनको यहाँ पे पहले से उसमें अगर उन लोग को एडमिशन मिल गया यहाँ पे, तो देन दे आर सेइंग कि देखो यहाँ पे इनको, ये तो पहले से सिटीजन नहीं थे, तो अभी आप इनको बोलेंगे कि यू सीज टू बी अ सिटीजन, चलो गेट आउट नाउ, ये चलेगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज पहले से सिटीजन नहीं थे और इनको परमिशन भी मिला था यहाँ पे, गवर्निंग बॉडी ने प्रायर अप्रूवल और सेबी का लेके इनको परमिशन दिया था पहले से। क्लियर है? तक आगे लिखा है यहाँ पे रूल 8 सब रूल 1 क्लॉज बी सब्जेक्ट टू देयर कंप्लाइंग विद ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रूल, तो ठीक है, बाकी सब रूल्स उन्होंने कंप्लाई किया हुआ है। ओके, सेकंड देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है adjudged bankrupt or is receiving the order in bankruptcy is made against him or is proved to be, क्या लिखा है insolvent, ठीक है, is proved to be insolvent। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे he is convicted of an offense involving, क्या लिखा है, fraud or dishonesty, ठीक है। now you can see similar points here coming up, the person either as a, देखो ये भी similar point, a person either as a principal or an employee in any business other than that, क्या लिखा है commodity securities or commodity derivatives except as a broker not involving any personal financial liability, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट, और मैंने नीचे के पॉइंट्स को पढ़ने, ठीक है।
अभी ये डी के नीचे वो 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, यू विल सी हियर, आई जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन, सी दिस इज पॉइंट नंबर 1 हियर, पॉइंट नंबर 2 हियर, एंड देन यू विल सी पॉइंट नंबर 3 हियर। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए, और ये तो बाद में अलग अलग पार्ट ही चालू हो जाता है यहाँ पे, तो ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए। लेकिन अभी इफ यू सी दिस पार्ट, नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द मेमोराइजिंग एस्पेक्ट। ये अपन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में, इसमें अपना ये एज वाला पॉइंट कवर उन्होंने नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया हुआ, किया रहेगा, क्योंकि ये इंसान यहाँ पे अपन बात करें वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर, तो बाबा पहले वो एडमिट हो जाएगा एज अ मेंबर, देन विल कंटिन्यू ना। और एडमिशन के टाइम पे अपन वैसे भी वो एज चेक ही कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज एडमिशन के टाइम पे वो एक लड़का था, उसका एज था 21 ईयर्स एग्जैक्टली, सो कैन ही गेट एडमिटेड, आंसर इज यस। अरे तो बाद में अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो 21 ईयर्स के ऊपर ही रहेगा ना, वो उसकी पीछे थोड़ी ना किसी की उम्र जाएगी, आगे जाएगी, तो 21 ईयर्स का पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अपन कौन से पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, सीधे बैंकरप्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया का पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, डिसऑनेस्टी वाला पॉइंट देख रहे हैं, डिसऑनेस्टी और फ्रॉड का पॉइंट देख रहे हैं अपन यहाँ पे अपन वो एंगेज वाला पॉइंट देख रहे हैं, एंगेज वाला पॉइंट देख रहे हैं अपन यहाँ पे, और एंगेज के अंदर वहां पे सब पॉइंट्स दिए। तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर, इफ आई गिव यू अ समरी, नो बेसिकली वी आर लुकिंग एट व्हिच पॉइंट नंबर बी, सी, डी एंड ई, ये अपन देख रहे हैं। और ई के बाद यहाँ पे दिया है 1 2 3, ई के अंदर दिया हुआ है 1 2 3, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हेन आई से ई इट मींस व्हाट, व्हेन आई से ई इट मींस दैट एंगेजेस वाला पॉइंट, एंगेज वाला पॉइंट मतलब कौन सा, इट मींस दिस वाला पॉइंट, कौन सा एंगेजेस वाला पॉइंट, एक मिनट, ये रहा, एंगेजेस, दिस वन। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है कि नॉट क्लियर? प्लीज टेल मी दैट, आर यू क्लियर विद दिस, नॉट क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। परफेक्ट, ओके, वो 3 पॉइंट कर लेते हैं अभी अच्छे से एक बार। सो नाउ स्टे विद मी एंड लेट्स डू दीस 3 पॉइंट्स एकदम अच्छे से। सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द सिटीजन पॉइंट अगेन? श्योर। देखो सिटीजन पॉइंट में से वैसे लिखा है यहाँ पे कि सी आइडियली अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यू हैव टू ऑलवेज सी नेगेटिव हियर, नो, सो यू हैव टू ऑलवेज रीड दिस पॉइंट एज नो पर्सन। देखो क्या बोल रहा है अपन यहाँ पे, नो पर्सन इज, एक मिनट यहाँ पे, we have to read this 8 sub rule 1 में, we have to always read it as no person, ठीक है, no person. So when you read point number B here, see देखो कैसा आएगा, no person is a citizen of India, ठीक है, no person who is not a citizen of India, sorry, no person who is not a citizen of India. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, the person should be a citizen of India, बरोबर है कि नहीं है? So remember at the time of क्या बोलते हैं, getting elected for the first time as a member, that person is a citizen of India. तो वो is a citizen of India तो अच्छी बात है, then he'll continue to be citizen of India, then he can continue as a member and he'll be satisfying this point, ठीक है। अब इमेजिन अगर बिगिनिंग में अगर कोई पर्सन यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, लेट्स से सिटीजन ऑफ लेट्स से साउथ अफ्रीका, ये सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे ब्रोकिंग करना है यहाँ पे, तो गवर्निंग बॉडी ने अगर यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लिया यहाँ पे सेबी का, देन कैन ही गेट मेंबरशिप? आंसर इज यस। तो उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दिया, प्रोवाइडेड दैट गवर्निंग बॉडी मे इन सूटेबल केसेस रिलैक्स दिस कंडीशन अपॉन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ तक गया? अभी अब उन लोग क्या बोल रहे हैं, अभी उसको यहाँ पे मेंबरशिप मिल गया और अभी वो कंटिन्यू कर रहा है, बट याद रखना ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट स्टिल ही गॉट मेंबरशिप बिकॉज़ गवर्निंग बॉडी टुक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी एंड गिव हिम द मेंबरशिप। अभी जब ये कंटिन्यू कर रहा है एंड देन ही स्टिल इज सीजिंग टू बी अ मेंबर, नो, बिकॉज़ ही इज नॉट अ मेंबर, सॉरी, ही इज सीजिंग टू बी अ सिटीजन, नो, बिकॉज़ ही इज नॉट अ सिटीजन। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई और आदमी होता जो पहले इंडिया का सिटीजन था और बाद में इंडिया का सिटीजन नहीं था, तो उसको यहाँ पे मेंबरशिप से निकलना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो सिटीजन का वो जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन ये आदमी पहले से सिटीजन नहीं था और इसने यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के पास गया था, गवर्निंग बॉडी ने इसके लिए यहाँ पे सेबी से बात किया रहेगा और सेबी से बात करके इसको यहाँ पे परमिशन दिया रहेगा दैट यू कैन बी अ मेंबर करके। तो आगे अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू करता है, तो ये अभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है ना, और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, चलो ऐसा इंसान भले कंटिन्यू कर रहा है विदाउट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन ही कंटिन्यू? आंसर इज यस। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सी दिस, देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियरिन शैल अफेक्ट दोज हु आर not a citizen of India but who were members at the time of such application and were admitted subsequently under the provisions of rule 8 sub rule 1 clause B, मतलब nothing but this part, this part, this part, this part। बोलो क्लियर यहां तक? ये गॉट इट? परफेक्ट यहां पे, ग्रेट, ओके, वेरी गुड। अभी आ जाओ यहां पे, ठीक है, यहां तक अपना क्लियर। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर ई जो है, जो अपना क्या था, वो एंगेजेस वाला पॉइंट, ठीक है, एंगेजेस वाला पॉइंट, उसका अपने को रीड करना। तो बेसिकली वी आर नाउ डूइंग अ डीप डाइव इनटू विच पार्ट, इनटू दिस एंगेजेस वाला पार्ट। ये एंगेजेस वाले पार्ट में डी के अंदर जो एंगेजेस लिखा हुआ है, इसके अंदर अभी अपन डीप डाइव कर रहे हैं यहाँ पे। सो सर अभी एंगेजेस में क्या क्या आएगा, लेट्स सी यहाँ पे।
एंगेजेस के अंदर पहले दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. He engages either as a principal or employee in any business other than that of securities or commodity derivatives. This we had already seen. Except as a broker or agent, not involving any personal financial liability. आगे लिखा है provided that simple. Provided that the governing body may, for reasons to be recorded in writing, permit a member to engage himself as a principal or employee in any such business if the member in question ceases to carry on the business of the stock exchange either as an individual or as a partner in a क्या लिखा है firm. तो बोलते हैं यहाँ पे कि अगर इसका कुछ और बिजनेस है और बोल रहे कि अगर इसका कुछ और बिजनेस है इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे इसका खुद का ही रनिंग का स्टॉक एक्सचेंज, तो बोलते हैं यहाँ पे ही शुड सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज either as the individual or as a partner in a firm. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, सपोज इफ दिस पर्सन इज रनिंग अ स्टॉक एक्सचेंज और ये कोई और स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे मेंबरशिप के लिए आ गया है यहाँ पे, तो बोलते भाई पहले तेरा पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो बंद कर ले फिर यहाँ पे आ जा. So can he do that? So if he does that, then only he will be given the membership यहाँ पे. ठीक है. Second यहाँ पे लिखा है in the case of those members who were under, ये the होना चाहिए, who were under, and this should be the, यहाँ पे t लिख दो एक, the who were under the rules in force at the time of such application permitted to engage in any such business and were actually so engaged on the date of such application, a period of 3 years from the date of severing their connection with any such business. क्या बोल रहे हैं? A period of 3 years from the date of severing their connection with any such business. तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि जब से आपने वो टाइज को सेवियर कर दिया ना, आपने वो नाता काट दिया ना, उसके 3 साल के बाद हम यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, देन वी मे थिंक ऑफ एडमिटिंग यू एज अ मेंबर. सिंपल याद रखिए. ओके, तो 3 साल का यहाँ पे गैप हो जाना चाहिए आफ्टर सेवियरिंग द टाइज. 3 साल का गैप हो जाना चाहिए आफ्टर सेवियरिंग द टाइज. आगे लिखा है नथिंग हियरिन शैल अफेक्ट द मेंबर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हिच आर क्या लिखा है कॉर्पोरेशंस, बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस रेफर टू इन आइटम्स A to N ऑफ प्रोवाइजो टू रूल सब रूल 4. ठीक है, तो सब रूल 4 में उन्होंने यहाँ पे A to N करके पॉइंट्स दिया हुआ है. एंड देयर विल बी सीइंग कि यहाँ पे अगर ये मेंबर्स अगर क्या बोलते हैं if they are members of such recognized stock exchanges and they are part of what corporations, body corporate, corporations खुद है, body corporates है, companies है, institutions है, they are themselves the members of the stock exchange. तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैटर है इनको अफेक्ट करेगा नहीं. बेसिकली they will be given the membership, they will be given the membership. इस तरीके से दिया हुआ है. बोलो क्लियर यहाँ तक? ये easy, that is the engages वाला point. Engages वाला point. Please tell me, give me a confirmation. यहाँ तक simple. Okay, everyone please tell me. Easy, clear. ये दिया बेसिकली. नाउ व्हाट हैव वी डन नाउ सर? अभी तक अपने क्या किया मेहनत इस चैप्टर में? वी हैव डन रूल 8 सब रूल 1, रूल 8 सब रूल 2, रूल 8 सब रूल 3. इस तरीके से अपन ने यहाँ पे कवर कर दिया इसको. इसके मैंने कोड्स भी दे दिए यहाँ पे. कोड्स आर वेरी इजी. इनफैक्ट मेनी ऑफ दीज एरियाज आर एक्चुअली कवर्ड इन दीज एरियाज ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि मेहनत यहाँ पे डबल बार करना है, मेहनत एक ही बार करना है अपने को यहाँ पे. तो और ये वाला पॉइंट अलग से आएगा, ये 2 और 2 और 2 वाला, विच इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर. तो खाली इसमें थोड़ा मेहनत कर लेंगे ना तो अपने को इस पे ग्रिप आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एमसीक्यूज. एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेनी एरियाज यू सी यहाँ पे 2 इयर्स मेंशन किया हुआ है, 21 इयर्स है यहाँ पे, और छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है. 16 एनाज इन अ रुपी. ठीक है, तो ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता. तो इसके लिए इसमें खाली फोकस करके अच्छे से कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दिस पॉइंट व्हिच वी हैड सीन. ये एंगेजेस वाला पॉइंट बहुत ही सही पॉइंट है, मस्त पॉइंट है. क्लियर है यहाँ पे, जिसमें एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगता है कि यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन करेगा. लॉ का एक्चुअल रीडिंग कौन से स्टूडेंट का कितना स्ट्रॉन्ग है ना, दैट विल बिकम क्लियर इफ द स्टूडेंट इज एबल टू आंसर दिस वाला पार्ट प्रॉपर्ली. ठीक है, ये पॉइंट नंबर, ये जो क्लॉज एफ है यहाँ पे 8 सब रूल 8 सब रूल 1 क्लॉज एफ, ये अगर स्टूडेंट का अगर पक्का हो गया यहाँ पे, तो अगर ये स्टूडेंट बोल पाता है कि हाँ इसमें एक्चुअली ऐसे होगा, तो ये एक इंडिकेशन दे देगा कि ये स्टूडेंट का यहाँ पे ग्रिप सॉलिड है लॉ के सब्जेक्ट में या लॉ के लैंग्वेज में. ओके परफेक्ट. बोलो यहाँ तक क्लियर एकदम? ये ठीक है, आगे बढ़ता है. लेट्स सी, गो वेरी स्लोली नाउ. ठीक है, अभी देखो क्या लिखा है रूल 8 सब रूल 4. ठीक है, अभी अपन ने कवर किया रूल 8 सब रूल 1, रूल 8 सब रूल 2. अभी अपन कर रहे हैं रूल 8, मैंने अपन ने किया था रूल 8 सब रूल 3, एंड नाउ वी आर कवरिंग रूल 8 सब रूल 4. लेट्स सी. Rule 8 sub rule 4, a company defined in the Companies Act 1956 shall be eligible to be elected as a member of a stock exchange if. तो यहाँ पे बोला है company. Now they are talking about company.
नाउ सी दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, ठीक है। तो अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आ भी चुका है, लेकिन यू सी दैट दे हैव स्टिल केप्ट कंपनी एट 1956 बिकॉज दिस रूल वाज मेड इन 1957, और बाद में उसके बाद इन्होंने इसको अमेंड किया ही नहीं है, ये वाले पार्ट को एटलीस्ट अमेंड किया ही नहीं है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि चलो कंपनीज एक्ट 1956 में जो कंपनीज इंकॉर्पोरेट रहेंगे उनमें भी किन किन कंपनी यहाँ पे मेंबरशिप दे सकते हैं। क्लियर है? देखो क्या लिखा है, इफ such company is formed in compliance with the provisions of क्या लिखा है, section 322 of the said act। तो अगर 322 सेक्शन के अंदर आता है of the said act मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, तो अगेन द पास्ट लॉ के रेफर किया उन्होंने यहाँ पे। A majority of the directors of such company are shareholders of such company and also members of the stock exchange। तो majority of the directors shareholders ही है कंपनी के, और यहाँ पे they are also the members of the stock exchange, ठीक है। they are also member, they are basically acting as the brokers of the stock exchange। आगे, and the directors of such company who are members of that stock exchange have unlimited liability in such क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी। तो directors who are the members of the stock exchange have unlimited liability in such क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी। And look at the condition, it is and unique चीज, and का मतलब क्या है, आपको सारे conditions satisfy करने हैं यहाँ पे, ठीक है। So the three conditions that are given here for a company, all three should be satisfied। पहले such company होना चाहिए 322 of the act में, of the said act मतलब in the Companies Act 1956, majority of the directors should be shareholders and also should be members of the stock exchange। and last में यहाँ पे लिखा है the directors of such company who are members of that stock exchange have unlimited liability in such a company। unlimited liability मतलब अगर कंपनी का limited liability नहीं है, मतलब दे आर शेयर होल्डर्स ऑल्सो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर शेयर होल्डर्स ऑल्सो, मतलब अगर कंपनी डूब रही है तो जब तक एक एक पैसा जो अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए रहेगा, वो सारा पैसा उनको पे करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड दैट दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पर्सनल पॉकेट, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑल्सो। दैट इज बेसिकली घर बेच के देना पड़ेगा, या अगर गोल्ड बेच के उनको देना पड़ेगा, तो दे स्टिल हैव टू पे एवरीथिंग दैट इज देयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अल्टीमेट लाइबिलिटी इन सच, क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी। Easy, simple यहाँ पे ही है। Please tell me this। Okay? आगे, according to proviso to sub rule where SEBI makes a recommendation in this regard, the governing body of the stock exchange shall, in relaxation of the requirements of this clause, as member the following corporations, bodies, companies or institutions namely, and then they are given that entire list। याद है अपने को, अपने देखा था यहाँ पे एन तक, ए से लेकर एन तक। ये कहाँ देखा था सर, ए से लेकर एन तक? सर यहाँ देखा था, आइए देखो यहाँ पे देखा था अपन, यहाँ पे ए से लेकर एन और प्रोवाइजो टू सब रूल 4, तो वही देख रहा अपन यहाँ पे ए से लेकर एन। तो इन शॉर्ट का ही देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। एक मिनट, ये गलती से इंडस्ट्रियल करके आया है, प्लीज मेक इट इंडस्ट्रियल यार, तो अजीब हो जाएगा यहाँ पे। प्लीज मेक इट इंडस्ट्रियल, जेन्युइन एरर। आगे लिखा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, और ऊपर है यहाँ पे बेसिकली ऑफ कोर्स आईएफसीआई, यहाँ पे लिखा है आईडीबीआई। आगे लिखा है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। देन दे आर गिविंग यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, माने इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली यू नो दिस बाय द नेम ऑफ आईसीआईसीआई, बरोबर है कि नहीं है। आगे लिखा है यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी स्पेसिफाइड इन द अबव एंड एनी सब्सिडरीज ऑफ द स्टेट बैंक और इन नेशनलाइज्ड बैंक सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग मर्चेंट बैंकिंग और सिमिलर सर्विसेज। इसमें लिखा है यहाँ पे एनी बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आगे लिखा है यहाँ पे एग्जिम, जो क्या लिखा है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बाद में लिखा है यहाँ पे नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इनका नाम दिया है यहाँ पे। आगे दिया यहाँ पे योर नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आगे दिया हुआ यहाँ पे एनी पेंशन फंड रजिस्टर्ड और अपॉइंटेड और रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड फाइनली दे हैव गिवन हियर यहाँ पे एनी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सिर्फ इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे, बोल दिया है यहाँ पे सीधा कंडीशन दैट according to proviso of sub rule where SEBI makes a recommendation in this regard, the governing body of the stock exchange shall, in relaxation of the requirement of this clause, as member the following corporations can be a member of the stock exchange as well। तो उनके representatives आएंगे और stock exchange में represent करेंगे। I have already told you before when we were doing SCR, you know that stock exchange is corporatized and demutualized। ये अपने काफी बार किया था। demutualized का मतलब मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन लोग ही खाली रन नहीं करते, इसके अलावा बाहर से भी लोग आ सकते हैं इसको रन करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है कि अगर सेबी को लगता है कि चलो अगर ये जो बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे विच आर बेसिकली इफ यू सी आर कोर आर बेसिकली इफ दीज कंपनीज अगर इंडिया से निकाल दो तो बेसिकली इंडियाज इकोनॉमी बैकबोन विल जस्ट क्रैश, ठीक है।
तो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें से अगर कोई भी पर्सन, अगर सभी को लगता है कि इसमें से इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनने के लिए, तो यहाँ पे दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर। सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे रूल 4A। so let's see this. A company defined in the Companies Act 1956 shall also be elected as a member of the stock exchange if, और if में दिया हुआ है यहाँ पे, let's see, such company is formed in compliance with the provision of section 12 of the said act is again Companies Act 1956। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, such company undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be specified by SEBI for registration of such company under subsection 1 of section 12 of the SEBI Act 1992। तो बोल रहे कि यहाँ पे जो भी कंडीशंस है यहाँ पे फॉर बिकमिंग द मेंबर, जो नॉर्म्स या रिक्वायरमेंट्स सेबी ने दिया रहेगा वो इन लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया है। The directors of the company are not disqualified from being members of the stock exchange। डायरेक्टर यहाँ पे क्वालिफाइड है, मतलब ढंग के डायरेक्टर्स है, कोई गलत काम इन्होंने किया नहीं है। आगे लिखा है अंडर क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 एक्सेप्ट सब क्लॉज F admit clause B and subclause thereof, and clause 3 except subclause A subclause F thereof, and the directors if any company which had been a member of the stock exchange and had been a declared defaulter or expelled by the, क्या लिखा है पे, स्टॉक एक्सचेंज। तो बोलते हैं अगर डायरेक्टर्स ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, कौन से कंपनी के डायरेक्टर्स, ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है जो सेक्शन 12 में आ रहे हैं यहाँ पे, ये कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं दे कैन बी द कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एंड यहाँ पे वापस लिखा एंड, मतलब ऑल द कंडीशन हैव टू बी सैटिस्फाइड। ये एंड वाले कंडीशंस हैं, वी सॉ दिस एंड वाले कंडीशंस इवन फॉर रूल 8 सब रूल 4। यहाँ पे भी आपने कोई देखो, यहाँ पे एंड वाला कंडीशन था, and here also you are seeing that and वाला condition। तो basically all the conditions have to be satisfied। आगे लिखा है not less than 2 directors of the company are persons who possess a minimum 2 years, क्या लिखा है यहाँ पे, experience, क्या लिखा, minimum 2 years experience। easy, clear है। 2 years experience किस में, dealing in securities, portfolio managers, investment consultants। ठीक है, basically dealing with the markets, ठीक है। not less than 2 directors of the company who possess minimum 2 years experience। तो 2 directors को minimum 2 साल का experience होना चाहिए each, ठीक है, इन व्हाट, इन दीस फील्ड, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या तो फिर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स। मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे ये एमसीक्यूज में आने के लिए। ठीक है, कि डायरेक्टर्स अगर रहेंगे कुछ कंपनीज के, जो इनका जो डिफाइन किया सेक्शन 12 में ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये कंपनी के अगर डायरेक्टर्स रहेंगे तो इनका इनमें से कितने डायरेक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट दे कैन गिव कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे अ मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्लियर है। तो इसमें आपका आएगा यहाँ पे कि 2 डायरेक्टर्स मिनिमम should have minimum 2 years experience each in dealing either with securities or portfolio management or investment consultancy। बोलो यहाँ तक क्लियर एकदम, ये वेरी सिंपल, प्लीज टेल मी। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ऑसम। ओके, एंड देन दे आर गिवन हियर यहाँ पे अदर्स करके, देन दे आर गिवन अदर्स करके, देखो क्या लिखा अदर्स में, वेयर एनी मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज अ फर्म। ठीक है, कैन द स्टॉक एक्सचेंज हैज पार्टनरशिप फर्म्स एज मेंबर्स, आंसर इज यस। ये मैंने कहा देखा था सर, वी हैड डन वन आंसर कॉल्ड एज गॉम्प। तो जो पी था ना, दैट वाज पार्टनरशिप एज मेंबर्स करके, या पार्टनरशिप फर्म एज मेंबर्स, तो ये वही था। द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, एक मिनट, सब रूल 1, ये कॉमा आना चाहिए यहाँ पे, सब रूल 1, 3 and 4 shall, so far as they can comply, they can apply to the admission or continuation of any partner in such a firm। Rule 8 sub rule 6, LLP as defined in LLP Act 2008 shall also be eligible to be elected as a member of the stock exchange। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए प्लीज मेक इट इफ, यहाँ पे प्लीज मेक इट if, ठीक है, if such LLP undertook to comply with such financial requirements and norms, again we likha financial requirements and laws provided by SEBI for the registration of such LLP under section 12 subsection 1 of the SEBI Act 1992, the designated partners of the LLP are not disqualified। तो वहां पे था director should not be disqualified, यहाँ पे वही लिखा है designated partners should not be disqualified from being members of the stock exchange under sub rule 1 except clauses B and 1 thereof, and sub rule 3 except clauses A and clause F, ठीक है, thereof, and the designated partners of the LLP had not held the offices of directors in any of the company or body corporate or partner in any firm or LLP which had been a member of the Calicut Stock Exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange। मतलब अगर आप पहले से कोई डायरेक्टरशिप क्या LLP में कोई एक डेजिग्नेट पार्टनर का पोजीशन होल्ड कर रहे थे और
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से निकाल दिया गया था। कहां से निकाल दिया गया था? यहाँ से दे वर रिमूव्ड एज मेंबर्स, या आपको डिफॉल्टर में ठहराया गया था, या आपको एक्सपेल कर दिया था स्टॉक एक्सचेंज से, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज यू आर इन द डिफॉल्टर्स लिस्ट। एंड अगेन द कंडीशन ऑफ एंड, ठीक है, एंड not less than 2 designated partners of the LLP are persons who possess minimum experience of क्या लिखा है 2 years, similar ये चीज, in dealing with securities, portfolio management, investment consultancy, ठीक है, investment consultants. Now you are basically seeing rules 12, 14 and 15. अब ये क्या बोलता है आराम से देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, let's see, एक एक करके करो मेरे साथ अच्छे से, देखो क्या लिखा। The recognized stock exchanges are bound to work in a prescribed manner. The Securities Contract Regulation Rules 1957 state that every stock exchange is required to follow the following rules, ठीक है, following rules इनको follow करना चाहिए। पहले audit of accounts of members, तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, the corresponding rule states that every member, rule 12, every member shall get its accounts audited by a chartered accountant whenever such audit is required by, क्या लिखा है यहाँ पे, SEBI. Easy, आगे rule 14, the books of accounts and other documents to be maintained and preserved by every stock exchange. अभी ये कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है, देखो क्या लिखा है, this is for every stock exchange. Now this is a requirement of the stock exchange, clear है? ये members of the stock exchange बोला नहीं है, stock exchange खुद क्या मेंटेन करेगा। सर आपने members का क्यों पॉइंट बोला यहाँ पे, क्योंकि when you see the next rule, no, that is rule 15, अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे हेडिंग, books of accounts and other documents to be maintained and preserved by every member of the recognized stock exchange. ये किसके लिए एप्लीकेबल है, मेंबर के लिए, और यहाँ पे 14 किसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे फॉर द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। तो देखते क्या लिखा, it states that every recognized stock exchange shall maintain and preserve the following books of accounts and documents for a period of, क्या लिखा है यहाँ पे, for a period of 5 years. Simple, आगे minute books of the meetings of, पहले लिखा है यहाँ पे members, governing body, any standing committee or committees of the governing body or of the general body of the, क्या लिखा है यहाँ पे, members, governing body, any standing committee or committees of the governing body or of the general body of the, क्या लिखा है यहाँ पे, members. तो उनका कुछ अगर कमिटी रहेगा बेसिकली जो फंक्शनिंग में हेल्प करता है, तो उनका भी हम लोग मिनट बुक मेंटेन करेंगे। मिनट बुक मतलब ऑफ कोर्स ना, मीटिंग होने के बाद उसका एक मीटिंग में क्या क्या हुआ वो अपन लिखते हैं मिनट बुक में, ओके। आगे लिखा है रजिस्टर ऑफ चेंज, रजिस्टर ऑफ चेंज इफ इट्स अ फर्म तो फुल नेम, एड्रेसेस, एंड बाद में आएगा वेयर एनी मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज अ फर्म, फुल नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स शैल बी शोन। आगे लिखा है रजिस्टर ऑफ ऑथराइज्ड क्लर्क्स, रजिस्टर ऑफ रेमिजियर्स ऑफ ऑथराइज्ड और रेमिजियर्स ऑफ ऑथराइज्ड असिस्टेंट्स। तो बेसिकली अगर कोई अपना रेमिजियर मतलब पता था ना, जो अपना एजेंट के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। आगे लिखा है यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, मार्जिन डिपॉजिट बुक, लेजर, जर्नल्स, कैश बुक, बैंक पासबुक, ये सब हम लोग मेंटेन करेंगे फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 5 years दैट दे हैव गिवन। 5 years मतलब ये वाला 5 years। इजी यहाँ तक, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इन रिलेशन टू अ स्टॉक एक्सचेंज। अब सर मेंबर को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द मेंबर फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 years। पहले रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लाइंट रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन को एक देयर इज अ मार्केट टर्म कॉल्ड सौदा बुक, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं जो सौदा जो हुआ वो सौदा मतलब डीलिंग जो हुआ है वो। आगे लिखा है यहाँ पे क्लाइंट लेजर, बाद में आएगा यहाँ पे जनरल लेजर, जर्नल्स, कैश बुक, बैंक पासबुक, एंड लास्ट में लिखा है यहाँ पे दैट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर showing full particulars of shares and securities received and क्या लिखा है यहाँ पे, delivered, received and delivered। ये अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, if you are the member मतलब ब्रोकर, ओके। अभी आगे लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व फॉर 2 years। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 2 years। ये जो था ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एवरी मेंबर, और ये बुक्स अपन मेंटेन कर रहे फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 years। ये कौन मेंटेन कर रहे मेंबर्स। अभी देखो क्या लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एंड प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो ऑफ कोर्स सर जो 5 years के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये अलग रहेंगे, जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लाइंट लेजर, जनरल लेजर, जर्नल, कैश बुक, बैंक पासबुक, डॉक्यूमेंट्स दैट शो दैट व्हाट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैव बीन रिसीव्ड और रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड, और ये जो डिटेल्स रहेंगे अलग रहेंगे। अभी ये डिटेल्स क्या है, ये है निटी ग्रिटी स्मॉल डिटेल्स। जो क्या लिखा है मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक showing full details of all contracts entered into by him with other members of the same exchange or counterfoils or duplicates of memos of confirmation issued to such other members। इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, that is basically all contracts। आगे लिखा है यहाँ पे counterfoils और duplicates of contract notes issued to client। counterfoil मतलब जो अपन जो उनको एक क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट देंगे बोलने की हमने ये ट्रांजैक्शन किया, उसका एक कॉपी जो हमारे पास रहेगा उसको हम बोलते हैं काउंटरफॉइल। इसका एक और नाम है डुप्लीकेट्स करके। आगे लिखा है यहाँ पे रिटन कंसेंट ऑफ क्लाइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एज क्या लिखा है प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंटर्ड इनटू एज प्रिंसिपल। दिस वी हैव डन इन एससीआरए, ठीक है।
where the members act as principals. ठीक है. The provisions of the act state that the central government or SEBI has certain powers which it can exercise on the working of the recognized stock exchanges. And यहाँ पे लिखा है let us discuss these provisions in detail. वो ठीक है यहाँ पे. तो यहाँ पे दिया हुआ है which can exercise on the working of the क्या लिखा है recognized stock exchange. So working of the recognized stock exchange. सिंपल है यहाँ पे. So this they have to maintain for how many years? For 2 years. ये अच्छे से याद करो. Because if there an MCQ is asked and they ask कि books of accounts यहाँ पे कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है, ठीक है, बाय अ मेंबर, और बाद में आ गया फॉर 2 years विच डॉक्यूमेंट हैव टू बी मेंटेन्ड बाय द मेंबर फॉर 2 years. सो 100% यहाँ पे ये जो मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक है ना यहाँ पे, दिस कैन कम एज एन ऑप्शन. ठीक है, और वो एक ऑप्शन रहेगा, और बाकी लोग ये 5 years का ऑप्शन देंगे. तो दे कैन गिव यू क्लाइंट लेजर, जर्नल, बैंक पासबुक, ऐसे 3 ऑप्शन दे दिया. और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अपने को 2 साल के लिए मेंटेन करना है मिनिमम. तो आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज दैट मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक शुड बी द आंसर. ठीक है, तो यू शुड क्लियरली एबल टू डिस्टिंग्विश 5 साल के लिए क्या है और 3 साल के लिए क्या क्या है. बोलो यहाँ पे क्लियर है? प्लीज टेल मी. सिंपल. ओके, ठीक है. क्या आगे देखते हैं यहाँ पे देखो सेक्शन 6 रेड विथ क्या लिखा है, रूल 17A. सेक्शन 6 रेड विथ रूल 17 है. यहाँ पे लिखा है पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड इंक्वायरीज. फर्निशिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स बाय एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेड विथ रूल 17A. दिस रूल 17A सीधा लिखा है ना, तो विल नॉट कॉल इट अ रूल 17 सब रूल है. ये 17A एक साथ है. अगर A ब्रैकेट में होता देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, तो इट रूल 17A states that it is a responsibility of every recognized stock exchange to furnish periodical return to the central government or SEBI. तो periodical return को भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा. यहाँ पे अभी किसका responsibility दिया है यहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज का. ओके, तो क्या क्या देना पड़ेगा? relating to the official rates of the securities enlisted thereon. तो official rates क्या है? The number of shares delivered through the clearing house, या clearing house, clearing corporation. आगे दिया यहाँ पे the making up price. आगे दिया यहाँ पे clearing house के programs क्या क्या है यहाँ पे, किस तरीके से उन लोग यहाँ पे how do they function. The number of securities listed and delisted during the क्या लिखा है previous 3 months की कितने shares securities company list किया, delist किया. The number of securities brought on or removed from the forward list during the क्या लिखा है यहाँ पे previous 3 months. ठीक है, तो अपने किसको which we securities we brought in, किसको अपने remove कर दिया during the previous 3 months. आगे लिखा है यहाँ पे any other matter as may be specified by Securities Exchange Board of India. ऐसे उन्होंने करके दिया हुआ है. Okay, so again some list of points which they have given that every recognized stock exchange must comply with. Okay, आगे maintenance and inspection of books of accounts. यहाँ पे the responsibility of the recognized stock exchange to maintain and preserve books of accounts as discussed in 14 and 15 as mentioned above, and that such documents and books of accounts shall be subject to inspection at all reasonable times by SEBI. लिख दिया सीधा कि कभी भी at all reasonable times SEBI can go for an inspection of these books and accounts. ठीक है यहाँ भैया. आगे order passed. Order passed section 6 subsection 3 read with rule 16 position that SEBI may in the interest of trade or in public interest. ये अपना याद है पुरानी बात, TIP, trade interest public interest में. Okay, issue an order to, ठीक है, call upon a recognized stock exchange or any member. तो यहाँ पे recognized stock exchange भी covered है, member भी covered है, दोनों को यहाँ पे उन लोग ये order issue कर सकते हैं. Thereof to furnish in writing such information or explanation relating to the affairs of the stock exchange or of the members in relation to the stock exchange as the SEBI may inquire, or appoint one or more persons to make an inquiry. Appoint one or more persons to make an inquiry in the prescribed manner in Rule 16 in relation to the affairs of the governing body. ये दो होना चाहिए, to the affairs of the governing body of the stock exchange, और यहाँ पे दिया हुआ है the affairs of any of the members of the stock exchange in relation to the stock exchange. So basically they are telling कि यहाँ पे the SEBI can खुद call upon the information. तो यहाँ पे खुद के बारे में लिखा है SEBI ने, खुद के बारे में बताया SEBI का, that is call upon the recognized stock exchange or any member. यहाँ पे or it can appoint any person to make an inquiry. ठीक है, यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का या तो फिर मेंबर्स का, तो दोनों जगह वही लिखा हुआ है यहाँ पे. इजी. आगे लिखा है सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच एन इंक्वायरी टू SEBI. सो दिस पर्सन हु इज अपॉइंटेड नाउ, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस पर्सन हु इज अपॉइंटेड हियर, he shall submit a report of the result of such inquiry to SEBI within such time as prescribed in Rule 16, or in the case of an inquiry in relation to the affairs of any of its members of a stock exchange, direct the governing body to make inquiry and report it and submit its report to क्या लिखा है SEBI. So that person will inform the governing body of the stock exchange कि देखो बॉस आपका मेंबर ये सब कर रहा है,
आप प्लीज सभी को इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए एंड सभी विल गिव द रिपोर्ट एंड सभी विल रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी। क्लियर यहां तक ये है? इजी यहां पे, सिंपल, प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर? ओके ठीक है। अच्छा अपन ने कुछ तो किया था यार, अपन ने है ना, व्हेन वी स्टडी एससीआर वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड डिम्सो पैम्सो, ऐसे कुछ अपन ने पढ़ा था, डिम्सो पैम्सो, याद है कि नहीं है? सेक्शन 6 यहाँ पे पीरियोडिकल रिटर्न अपन फाइल करते हैं एंड सभी इंस्पेक्शन अगर करता है और बोलता है कि हाँ वी शुड कॉल अपॉन सच इन्फॉर्मेशन एंड द इन्फॉर्मेशन हैज टू बी गिवन बाय डिम्सो पैम्सो, वो सब लिखा था। तो उसी का करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे? Production of books of accounts and document, the provision of section 6 shall also state that where an inquiry in relation to the affairs of the stock exchange or affairs of its members in relation to the stock exchange has been undertaken under subsection 3, तो ये वही है subsection section 6, मतलब now we are entering the section, no, तो section मतलब ये basically आ गया, this is part of SCRA, that is Securities Conduct Regulation Act, तो ये वही लिखा है, तो basically एक तरीके से repeat हो गया, so you can just read it here also। जो क्या लिखा है? every director, manager, secretary, other officer of the stock exchange, वही है। आगे लिखा है every member of the stock exchange, if the member of the stock exchange is a firm, then every PAMSO, partner, member, secretary or other officer of the firm, and every other person or body of persons who has had dealings in the course of business with any of the persons mentioned in clauses A, B and C, whether directly or indirectly, ठीक है? So this is basically from SCRA, because यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? सेक्शन नंबर, that is सेक्शन नंबर लिखा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, ठीक है? एक्चुअली अपन ने पहले कवर कर दिया when we did SCRA, ओके? आगे लिखा है यहाँ पे shall be bound to produce before the authority making the inquiry all such books of accounts and other documents in his custody or power relating to or having a bearing on the subject matter of such inquiry, and also furnish the authorities within such time as the case may be, as may be specified, with any such statement or information relating thereto as may be required by, क्या लिखा है? as may be required of him, तो जो भी उनका रिक्वायरमेंट है कि ये बुक चाहिए, ये इंक्वायरी करना है, जो भी लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ओके? ऑफ डिम्सो पैम्सो, मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहां तक? ये सिंपल, यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते एक बार, ठीक है? अभी लिखा है सेक्शन 7, अगेन सेक्शन 7 व्हिच वी हैड सीन इन SCRA, दैट वाज एनुअल रिपोर्ट, बराबर है कि नहीं है? बट यहाँ पे एक रूल कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रूल 17, ठीक है? इसके बारे में लिखा है, और ये रूल 17 का ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसके लिए आ गया था यहाँ पे। ऑल्सो नो इन दिस प्रोडक्शन ऑफ जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, देयर आर सम एक्स्ट्रा एरियाज यहाँ पे जो ये रूल 16 का दिया हुआ है, ठीक है? दैट इज वाई दिस पार्ट इज कमिंग, जो अपन रूल 16 का देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे अपन इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पे किसका, स्टॉक एक्सचेंज का या मेंबर का, या तो फिर अपन किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द मेंबर, ठीक है? तो ये बेसिकली रूल 16 का मामला है, बट इट इज कनेक्टेड टू रूल 6, दैट इज वाई इट इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आल्सो, दैट इज SCRR। एक्चुअली मैटर SCRA का ही है, दैट इज रूल्स, दैट इज सेक्शन 6, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे दिस मैटर इज आल्सो इन रिलेशन टू सेक्शन 7, ठीक है, व्हिच वी हैड सीन इन SCRA, बट उसका जो करस्पॉन्डिंग रूल्स है दैट इज बेसिकली इन रूल 17 हियर। देखते क्या लिखा? Annual reports to be furnished to CG by the stock exchanges, देखो क्या लिखा? The provision states that every recognized stock exchange shall furnish a copy of the annual report to the central government, which shall contain the particulars as prescribed in, क्या लिखा है? Rule 17 of the Securities Conduct Regulation Rules 1957. The said rules position that, देखो क्या लिखा? Every recognized stock exchange shall before 31st day of Jan, यहाँ पे 31st कर देना, यहाँ पे ये लॉ को बोलने का तरीका होता है यहाँ पे, दैट इज 31st डे ऑफ जैन, ऐसा आना चाहिए, दैट इज बाय 31st जैन, ओके? बाय 31st डे ऑफ जैन इन ईच ईयर और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज अ सेबी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउ, ठीक है? तो हर स्टॉक एक्सचेंज को बाय 31st जैन एवरी ईयर, तो ये यूनिक है, जनरली वी डोंट सी 31st जैन, नो, वी कैन सी मे बी आफ्टर 31st मार्च सम डेट, जैसे 30 डेज आफ्टर 31st मार्च, या तो फिर 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च, या तो फिर 3 मंथ आफ्टर 31st मार्च, या तो फिर 6 मंथ आफ्टर 31st मार्च, जनरली अपन ये देखते हैं। बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर द 31st डे ऑफ जैन इन ईच ईयर। नाउ व्हेन दे से ईच ईयर, नो ईच ईयर, दे मीन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? कैलेंडर ईयर। क्या लिखा? कैलेंडर ईयर। तो पढ़ते हैं ये, देखो क्या लिखा? बिफोर 31st डे ऑफ जैन इन ईच ईयर or within such extended time as a SEBI may from time to time allow, furnish an annual report to SEBI about its activities during the preceding calendar year। क्या लिखा? preceding calendar year। तो जो अपना अगर ईयर था, लेट्स से यहाँ पे 1st Jan 2018 to 31st December 2018, तो बाय 31st January 2019 we need to give an annual report to SEBI। इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, annual report to SEBI, okay? Which should inter alia contain detailed information about the following matters। और क्या matters यहाँ पे? Change in the rules and the bylaws, जो stock exchange ने किया रहेगा वो, if any, and changes in the composition of governing body, जो भी हुआ रहेगा वो SEBI को अपने को inform करना पड़ेगा in the annual reports, in the annual reports, ठीक है? So all the changes we have to notify to the
to the Securities and Exchange Board of India. Clear? Easy यहाँ पे बोलो clear यहाँ तक? Please tell me whether this is clear or not. No problem at all. ठीक है, आगे का पढ़ते हैं, लेकिन खाली बोलता ना ये क्लियर है कि नहीं है. ठीक है, याद रखना दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 7 दैट वी डिड इन एससीआर. हाँ, तो अपन ने सेक्शन 6 का आज आगे का जो रूल्स का पार्ट वो कर लिया और सेक्शन 7 का कर लिया. सो इन एग्जाम आल्सो डोंट वरी, सपोज इफ यू विजट बिफोर द एग्जाम यू आर डूइंग सेक्शन 6, तो आने आप यहाँ पे एससीआर तो करोगे ना, तो यहाँ पे यू विल बी कवरिंग दैट पार्ट. सेक्शन 7 जब भी करोगे तभी आप ये जब भी करोगे दैट टाइम आपका इसका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा एंड सेक्शन 7 का, एंड यू विल बी रीडिंग द एक्स्ट्रा रूल 17 यहाँ पे. ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे. आगे लिखा है कि अपन को और क्या क्या चीज यहाँ पे देना पड़ेगा इन द एनुअल रिपोर्ट. तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे एनी न्यू सब कमिटीज सेटअप एंड चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, एडमिशन रीएडमिशन डेथ्स रेजिग्नेशंस ऑफ द मेंबर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स, इसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, तो कुछ डिस्प्यूट हो गया रहेगा यहाँ पे, तो आर्बिट्रेशन का मामला अपन देखेंगे. बिटवीन मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, डिफॉल्ट जो भी अपन ने किया था वो, एक्शन टेकन टू कॉम्बैट एनी इमरजेंसी इन ट्रेड. इमरजेंसी इन ट्रेड अगर रहेगा तो बेसिकली कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया रहेगा, देन हाउ डिड द स्टॉक एक्सचेंज डील विद इट. सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड डीलिस्टेड, उसका एक लिस्ट दे देंगे अपन यहाँ पे पूरे साल भर में कौन से सिक्योरिटीज लिस्ट हुए थे, डीलिस्ट हुए थे. एंड सिक्योरिटीज ब्रॉट ऑन और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरवर्ड लिस्ट, इसका अपन यहाँ पे डिटेल्स दे देंगे टू द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, sorry, to the Securities and Exchange Board of India. This will be given by the stock exchange in the annual report. Further, every recognized stock exchange shall within 1 month of the date of the holding of its annual general meeting. तो एक नया requirement, again very important for MCQs. देखो ये क्या लिखा, every stock exchange shall within 1 month of the date of the holding of its annual general meeting furnish the SEBI with a copy of its audited balance sheet and profit and loss account for its क्या लिखा है preceding financial year. क्या लिखा है? For its preceding financial year. तो अपने को and AGM के within 1 month we have to submit it to SEBI. Okay, that is in relation to our audited balance sheet and profit and loss account of the stock exchange. Easy, simple, clear. Please tell me. That completes this chapter, and that is the completion of our the entire SCRA and SCRR finally. Clear? Okay, ठीक है.